Hello students, how are you? Fine. So now today we want to discuss gravitational potential. In the last lecture we discussed about potential energy. Now what's the meaning of gravitational potential? Gravitational potential we will consider at any point inside gravitational field. Let us say you are considering this point O and we are considering that mass m is situated at this very point O. So now due to presence of this mass m, gravitational field is set up surrounding this area. So now let's say this whole blackboard is the gravitational field developed due to this mass m. So now what we want to see that what will be gravitational potential at point P, which is at a distance r from this mass m. कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या होगा? तो अब जैसा कि ये पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, सो वी से gravitational potential at a point. So it is defined as amount of work done, or you can say amount of work required to move unit mass from infinity to that point inside gravitational field. तो हमने क्या कहा? Amount of work required to move unit mass from infinity to that point कौन सा? जिस पॉइंट पे आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हो, इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड. सो बच्चे, अब अगर तुम इस डेफिनेशन को ध्यान से देखो तो क्या डिफरेंस है जो लास्ट हमने काम किया था. व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, then we discuss amount of work required to move a body. That means we considered total mass of the body. But here, in spite of taking total mass of the body, we are considering unit mass. So this is the basic difference. तो obviously आर्टिकल अगर हम कर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, दैट विल बी इन द सिमिलर मैनर. उसमें कोई फर्क नहीं आएगा. हम क्या करते हैं, हम इस लाइन को ज्वाइन करते हैं और अब हम इसमें ये कहते हैं कि जब आप बेटा बात करते हो इन्फिनिटी की, दैट मीन यू आर कंसिडरिंग अ पॉइंट outside the gravitational field. We are considering that gravitational field intensity is zero at infinity. तो अब हम इसमें ये कहते हैं, let at any instant unit mass is placed at point A, which is at a distance x from the body of mass capital M. यानी कि हम ये मान रहे हैं कि यूनिट मास इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड. तो ना फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास, तो कितनी फोर्स होगी? इट विल बी जी एम 1/x². ठीक हो गया ना. एक बॉडी का यूनिट मास है, एक का एम है, कैपिटल एम है, एंड दिस फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन. अब इसके बाद हम कहते हैं कि हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव यूनिट मास फ्रॉम ए टू बी थ्रू स्मॉल डिस्टेंस dx. तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड dw will become f dot dx. Now both are acting in the same direction, force and displacement.
So it will be f dx cos of 0 degree. Now cos of 0 degree is 1, so it will be f dx यानी कि g m by x square into dx. तो अब आप देखो लास्ट आर्टिकल में भी पोटेंशियल एनर्जी में भी इसी तरीके से किया था. एंड नाउ total amount of work required to move unit mass from infinity to point P. From infinity to point P. So what will be this W? It will be integration of dW and the limits will be from infinity to point P. So it will be g m by x square dx. अब इसमें लिमिट्स किसकी होती हैं? x की. x क्या है? x is the distance between unit mass and mass that is capital M. तो अब आप इन्फिनिटी से पॉइंट P पे ये डिस्टेंस कितना बन जाता है? r के बराबर. तो नाउ इट इज gm 1 by x स्क्वायर की इंटीग्रेशन बन गई -1 by x फ्रॉम इन्फिनिटी टू r. तो इट विल बी gm -1 by r plus 1 by infinity. Now 1 by infinity is 0, so it is minus gm by r, and this work is nothing but it is the gravitational potential. So gravitational potential at any point is given by minus gm by r. So clear हो गया? तो अब आपने माइंड में ख्याल रखना है बेटा, अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी का आर्टिकल कर लिया है तो आप अपने आप इस आर्टिकल को करिए. सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस ये है कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m, हियर वी आर कंसीडरिंग यूनिट मास. सो नाउ आफ्टर दिस वी विल डिस्कशन ऑफ द रिजल्ट. इस रिजल्ट से आपके पास क्या आ रहा है? इस रिजल्ट से हमारे पास ये पॉइंट आ रहा है नंबर 1 कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी. क्या है पहली चीज? कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी. दूसरा आप इसमें देख रहे हो कि आपके पास एक्सप्रेशन आया है -gm by r. तो दैट मीन्स इट इंडिकेट्स दैट gravitational potential is a negative quantity. तो दो चीजें होगी. एक हमने इसमें क्या लिया कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा हम कह रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव. और इसके बाद now what will be the units of gravitational potential? Units of gravitational potential. तो अब आप देखिए, it is work done. Work is in joule. Work done per unit mass. So the units will be joule per kilogram. तो ये अगर अब आपको आर्टिकल आ जाए कि हाउ विल यू डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट, और उसके बाद व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो हमने सारा डिस्कशन ले ली. अब इसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे वेरियस पॉइंट्स के क्या क्या डिस्कशन में कहाँ पर क्या वैल्यू हो सकती है. दीज आर यू कैन से फैक्ट्स अबाउट gravitational potential. Facts about gravitational potential. अब इसमें जैसे हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी उस दिन फाइंड आउट की थी, उसी के बेसिस के ऊपर अब आपके पास याद है उस दिन हमने बेटे लिया था कि अगर आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के सेंट्रॉइड के ऊपर हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की थी, और हमने ये शो किया था कि दिस ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दिस वेरी पॉइंट इज 0
if you are considering that equal mass m is placed at each corner of the equilateral triangle with the side r या l जो भी ले लो, जीरो आया था ना, क्योंकि उसमें हमने ये कहा था कि ये फोर्सेस बैलेंस हो जाती हैं, रिजल्टेंट फोर्स कम्स आउट टू बी जीरो. So now the next question is, what will be the gravitational potential at this centroid? तो अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर आप वो पॉइंट पे देखना चाहोगे तो बेटा कैसे फाइंड आउट करोगे? यू विल टेक हियर, मैंने कहा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो दैट मीन्स इसमें हम क्या करेंगे बेटा? वी विल कैलकुलेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट ओ ड्यू टू मास एट पॉइंट ए, ड्यू टू मास एट पॉइंट बी, ड्यू टू मास एट पॉइंट सी. और उसके बाद हमने इसका क्या लेना है? एल्जेब्रिक सम. क्योंकि ये स्केलर है तो इसलिए हम इसमें एल्जेब्रिक सम लेंगे. एल्जेब्रिक सम का मीनिंग क्या है कि इफ देयर इज अ साइन ऑफ प्लस देन ऐड, if there is a sign of minus then subtract. Now it means that potential at point O is potential at point O due to mass at A, due to mass at B, due to mass at C. और ये क्या है? माइनस GM बाय, अब आपको याद होना चाहिए हमने उस दिन इसको L लिया था या L ले लो चाहे, या R ही अगर आप ले रहे हो तो ये डिस्टेंस कितना आता है आपके पास? पहले AP आएगा, AP कितना बनेगा? दिस R स्क्वायर माइनस R बाय 2 का होल स्क्वायर अंडर द रूट, तो इट इज 3R स्क्वायर बाय 4 अंडर द रूट. ठीक है ना, स्क्वायर बाय 4 हो गया तो इट विल बी अंडर रूट 3 बाय 2R. देन व्हाट विल बी OP ना? OA चाहिए आपको. OA क्या होगा? 2. इट इज इन द रेशियो ऑफ 2:1, तो OA will be 2 by 3 of AP, so 2 by 3 of, so that means it will be R by under root 3. So that means here you will put R by under root 3, और यहाँ भी बच्चे सेम बनेगा because all the three distances are same. इसमें OA is equal to OB is equal to OC and that is R by under root 3. मैंने वहां भी डिस्कस किया था. तो अब ये तीनों माइनस हैं, अब ये क्या बन जाएगा? पहली बार इट इज माइनस अंडर रूट 3 GM by R, कॉमन 1 plus 1 plus 1, तो इट विल बी माइनस 3 अंडर रूट 3 GM by R. So this is the gravitational potential at point O. ठीक है, तो इसका मतलब अब यहां से अगली पॉइंट क्या आ गया कि इट इज नॉट नेसेसरीली that if gravitational potential intensity is zero at any point, then gravitational potential must be zero at the same point. आपके सामने है, इसमें आपकी इंटेंसिटी क्या आई थी? जीरो आई थी, लेकिन पोटेंशियल क्या आ रहा है? नॉन जीरो. क्यों ये डिफरेंस आया? क्योंकि बेटा पोटेंशियल स्केलर है, फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है. अब दूसरा आपको याद होगा, इफ यू आर कंसिडरिंग हॉलो स्फीयर, नाउ यू कंसिडर hollow sphere of hollow, second number you consider hollow sphere of mass m and radius r. तो ये बेटा एक hollow sphere है जिसका मास m है और रेडियस r है, और मास इसमें हम कहते हैं मास हॉलो स्फीयर अंदर से, सो दैट मीन्स होल ऑफ द मास विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस. ठीक है ना, तो इस केस में आपको याद होगा कि सरफेस के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या बनी थी? आपके पास कितनी आई थी? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू
that comes out to be g m by r square. और अंदर it comes out to be 0. यही था ना. अब potential at any point inside will be minus gm by r, which is equal to potential at any point on the surface. अब ये बेटे कैसे बनेगा कि इसमें, अब मैंने आपको ये चीज तो देखो क्लियर है कि जब आपके पास इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो है जी एम बाई आर स्क्वायर आई है ऑन दिस वेरी सरफेस, तो जब आप पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहोगे तो यू विल कंसिडर हियर द यूनिट मास, होल ऑफ द मास इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट दिस वेरी पॉइंट. तो ये आपका सरफेस के ऊपर बनेगा माइनस जी एम बाई आर. अब इंटेंसिटी अंदर 0 है, बट पोटेंशियल जो है बेटा वो हम इनसाइड क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वो अंदर नॉन जीरो होगा. पोटेंशियल इनसाइड हॉलो स्फीयर इज नॉन जीरो. और वो कितना है, दैट इज द सेम एज ऑन द सरफेस. अब ये पॉइंट कैसे आया ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ. तो इसका मतलब अब 2 एग्जाम्पल मैंने आपको ऐसी दे दी जिसमें हमने ये कहा कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 है बट पोटेंशियल नॉन जीरो. अब ये जो अभी का पॉइंट था ये हम यहाँ से लेंगे. नाउ वी वांट टू सी रिलेशन बिटवीन gravitational field intensity and potential. Field intensity and gravitational potential. अब बेटा आप देख सकते हो कि E आपके पास किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी आती है जी एम बाई आर स्क्वायर, तो उस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना बनता है, माइनस जी एम बाई आर. तो यहां से ये चीज क्लियर हो जाती है कि E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर. क्या है E, माइनस डी वी बाई डी आर. जो अभी मैंने पहली बात बताई थी बेटा, व्हेन E इज 0, gravitational field intensity inside hollow sphere is 0. This means dV by dr is 0. That means variation of potential with respect to position of the point. R क्या है? R is the point where you want to calculate potential from the center. तो dV by dr 0 का मतलब क्या हो गया? V is constant. So that means potential at any point inside hollow sphere is same. Constant है, same है. तो अगर same है तो किसके बराबर है? तो it is equal to gravitational potential at any point on the surface. So clear हो गया. अब इससे रिलेशन से ये भी पॉइंट क्लियर हो गया कि if at any point potential is known to you, then how you can calculate इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अब दूसरी वाइस वर्सा आप क्या कह सकते हो, V इज इक्वल टू कि अगर आपको किसी मोमेंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आपके पास है एंड यू वांट टू कैलकुलेट पोटेंशियल, तो हम क्या कहते हैं, इट इज द E डॉट डी आर, है ना, और इसका इंटीग्रल. तो इट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी. तो अब dv बाई डी आर को देखो बेटा, dv बाई डी आर को क्या बोलते हैं, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस. सो दिस इज नोन एज पोटेंशियल
ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब E डॉट डी आर, इसको क्या बोलते हैं? लाइन इंटीग्रल ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। सो बच्चे, what is dV by dr? Variation of potential with respect to distance. So we call it as potential gradient. तो मैं आपको पहले भी बताया था, यहाँ भी वेरिएशन किसी भी क्वांटिटी की विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस हो तो टर्म ग्रेडियंट यूज होती है, और ये लाइन इंटीग्रल है। अब आप इसी चीज को ले लो कि ये फॉर्मूला ठीक है या नहीं। ई क्या था बेटे? gm बाय आर स्क्वायर, है ना? तो अब अगर आप v फाइंड आउट करना है तो आप क्या लोगे? माइनस gm बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर, क्योंकि उसमें ई और डी आर आपका सेम डायरेक्शन में होता है कि नहीं होता? अभी लिखा है, तो नाउ इट इज माइनस gm। अब 1 बाय आर स्क्वायर, 1 बाय आर स्क्वायर की इंटीग्रेशन जब आप लोगे तो आपके पास क्या आएगी? इट विल बी माइनस 1 बाय आर, यही होती है ना? और इसमें जब आप लिखते हो तो यू आर गेटिंग द पॉइंट टू बी gm बाय आर। तो इस तरीके से ये आपके पास था कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन आएगा? उसमें रिलेशन आएगा बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल is at a point is gravitational potential energy, gravitational potential energy per unit mass। देखो कैसे बेटा, यू आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ली जो आई थी माइनस gmm बाय आर, तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी किसके से? इस मास की, तो पर यूनिट मास क्या बन गया? माइनस gm बाय आर, तो इट विल बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए रिलेशन बिटवीन gravitational potential and potential energy, relation between gravitational potential and field intensity। तो इस तरीके से ये रिलेशंस आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। और यूनिट भी देख लो, एनर्जी का यूनिट जाउल आ गया, और जब आप पोटेंशियल लिखते हो पर यूनिट मास तो जाउल पर किलोग्राम। अब और क्लैरिटी के लिए आप इसमें एक प्रॉब्लम लीजिए। ग्रेविटेशनल प्रॉब्लम इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू मास इज गिवन बाय E is equal to A by R square where A is constant। तो आपको क्या बताया मैंने कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट मास की वजह से A बाय आर स्क्वायर है, तो यू हैव टू फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल at point at a distance r, at a distance r। कैसे फाइंड आउट करोगे? तो नाउ सॉल्यूशन, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर किसी जगह पर
फील्ड इंटेंसिटी दी हुई है, आपने पोटेंशियल पर पहुंचना है, तो क्या फॉर्मूला था, वी इज लाइन इंटीग्रेशन दैट इज नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी आर। अब इसमें देखिए ई एंड डी आर, ई डॉट डी आर पहले निकाल ले, ऐसे ही इसको लिया तो ई डी आर। अब आपको पता है whenever you are calculating gravitational field intensity, this is always pointing towards the mass due to which field is developed, और dr displacement भी, body has to move from infinity to r, तो ये भी उसी डायरेक्शन में होगी, तो दैट मीन्स एंगल बिटवीन द टू विल बी 0 डिग्री। इस तरफ को E है और इसी तरफ को dr है, तो angle is 0 degree, cos 0 degree is 1, so that means it will be E dr. And now the limits will be from infinity to r. Infinity means a point outside the gravitational field. Now minus, अब E की वैल्यू है a by r square dr from infinity to r. अब इसमें बेटे जब आप फाइंड आउट करोगे तो a कांस्टेंट बाहर आ गया, 1 by r square dr from infinity to r माइनस c। अब इसकी इंटीग्रेशन देखो, 1 by r square की इंटीग्रेशन बनेगी r minus 2 plus 1 minus 2 plus 1 and it will be from infinity to r minus c, then minus 1 by r, then minus minus plus 1 by infinity, 1 by infinity is 0. So that means gravitational potential comes out to be equal to A by R. तो बेटा इस तरीके से now you should have the clear cut meaning of, आपके माइंड में क्लैरिटी हो बेटा, gravitational field intensity, gravitational field potential, gravitational potential energy and relation among all these, how these are related to each other. और मैंने आपको इसमें बड़ा क्लियरली बता दिया न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए how you can calculate field intensity when there are number of bodies acting simultaneously, या आप ऐसा कह सकते हो कि when a point is under the influence of number of gravitational field, कोई भी point अगर वो इन्फ्लुएंस में है नंबर ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड्स के, then how can you calculate field intensity, how can you calculate potential and how can you calculate potential energy. So बेटा मैं तो रादर ये कहूँगी कि इकट्ठा बैठ के इन तीनों वीडियोस को व्यू करिए और अपने माइंड में क्लैरिटी रख करके फिर आप डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स करिए, तो यू विल सर्टनली enjoy a lot. So thank you very much. So please like, share and subscribe. Thank you.